Good morning, students. That is part 3 of chapter 10, that is light, reflection and refraction. What we will learn in this part 3, let me tell you. In this part 3, we will learn about representation of images formed by spherical mirror using ray diagrams. And in this part, we will learn image formation by convex mirror, because by concave mirror already we have done in last part 2. And then we will go for uses of convex mirrors. Okay, after that, sign convention for reflection by spherical mirrors, and then mirror formula and magnification. These points we will study in this chapter, in this part of chapter 10, one by one. Image formation by convex mirror. See, for convex mirror we will consider only two positions of the object. First position will be when the object is at infinity, and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror, no matter what the distance is. For convex mirror, only and only two positions of the object will be considered. If you remember, for concave mirror there were 6 positions of the object. For that we learn how to draw ray diagram of image formation. Okay, so these are the two positions. In one position, first position, the object is at infinity, and at second position the object is in front of the mirror, no matter what the position is. Anywhere, यहाँ यहाँ कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखें तो आपका जो इमेज है वो इसी पोजीशन पर बनेगा. ओके, सो क्या देखते हैं आप, जब फर्स्ट पोजीशन है एट इन्फिनिटी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर. ओके, और दूसरा पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर है यहाँ, तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में. These two positions are there for object when we are learning about image formation by a convex mirror. Okay, one by one यहाँ पर देखते हैं image formation कैसे होता है. This is your convex mirror MN, that is principal axis, and this is the object. The object is considered at infinite. The first ray considered that is coming parallel to the principal axis and incidenting on the mirror. After reflection क्या होता है, जो रेज पैरेलल होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती हैं, वो जाती हैं फोकस से. पर चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये फोकस से जाएगी नहीं, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बट अगर हम उसे पीछे बढ़ाएंगे ना तो हमको ऐसा फील होगा कि इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. दूसरा रे कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक. अब सी दिस साइड, ये कहीं नहीं, पीछे की साइड अगर हम मिलाते हैं इनको तो ये फोकस पर मीट करती हैं, और जो इमेज है वो यहाँ फोकस पर बनेगा. ओके, सो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर. इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर, बिहाइंड द मिरर. साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. जब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट नहीं होती हैं, वर्चुअली मीट होती हैं, तो वो हमारा इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है. ओके, सेकेंड है ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन इनफाइनिटी एंड पोल. कहीं भी आप रख दीजिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दिस इज योर मिरर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द ऑब्जेक्ट. पोजीशन क्या है, पी और इनफाइनाइट के बीच में, कहीं भी, एनीवेयर. ओके, फर्स्ट रे कंसिडर करिए, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस, पर बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स मिरर तो वहां से ये एक्चुअल में पास नहीं होगी, appear to pass through the focus. ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई. दूसरी रे हम कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाती हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सी से ही पास हो जाएगी, और ये दोनों रेस कहां मीट होती हैं, फोकस से पहले थोड़ी सी मीट होती हैं, एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट. ओके, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज by convex mirror when the object is between infinite and P. Okay, this is second one. यहाँ पर देखो ये C से आई थी और C से ही वापस चली जाएगी. Okay, one thing did you notice, no matter whether the mirror is concave or convex, we are considering only and only two rays. कोई भी दो रे आप ले सकते हैं,
जो स्टार्टिंग में हमने 3 रेज बताई थी, 4 रेज बताई थी, तो कोई भी 2 रे लेकर आप अपना इमेज बना सकते हैं। फाइन। Nature, position and relative size of the image formed by a convex mirror. As I told you, there are only two positions of the object, number one infinitive and number two between P and infinitive anywhere in front of the mirror. जब infinitive पर आपका ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन क्या थी? फोकस बिहाइंड द मिरर। कैसी थी इमेज? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, और वर्चुअल एंड एरेक्ट। और दूसरे केस में जब बिटवीन इंफिनिटिव एंड पोल है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज बनेगा बिटवीन P एंड F एंड अगेन बिहाइंड द मिरर। दोनों ही केस में इमेज बिहाइंड द मिरर है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड एरेक्ट। सो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, एरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। ओके, You have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. तीनों अभी हमारे हो गए। Which of these mirrors will give the full image of a large object? सोचकर थोड़ा बताओ कि इन तीनों में से कौन से मिरर में से कोई बड़े ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज हमको बनेगा, मिलेगा। ये आपकी एक्टिविटी है 10.6 and it is given on page number 167 in your textbook. तीनों के तीनों मिरर आप ले लीजिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और तीनों से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। व्हाट डू यू सी? किससे आपको आपका डिजायर्ड इमेज मिलता है? यू गेट योर डिजायर्ड इमेज बाय अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर से ही आपको किसी लार्ज ऑब्जेक्ट का फुल इमेज मिलता है, दैट यू कैन सी। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं? Convex mirrors are commonly used as rear view mirrors in the vehicles, and these mirrors are fitted on the side of the vehicle. क्यों? Because they enable the driver to see the traffic behind him, and it is helpful for safe driving. Okay, these mirrors are perfect when we have to see the image of any object diminished and erect, तो तभी भी हम ये यूज करते हैं। Another thing is convex mirror have a wider field of view as they are curved outward. तो उनका जो व्यू होता है ना, वो एक बहुत वाइडर स्पेस को कवर करता है। सो कॉन्वेक्स मिरर आर एनेबल द ड्राइवर, द कॉन्वेक्स मिरर्स enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो गाड़ी चलाने में ड्राइवर को इजी रहता है, इसीलिए ये वाला मिरर यूज किया जाता है। फाइन, these are the questions. Define the principal focus of a concave mirror. I think you can define it by your own. Focus क्या होता है? Focus is that point from which the rays coming parallel to the principal axis pass through after reflection. Okay, radius of curvature of a spherical mirror is 20. तो फोकल लेंथ क्या होगी? R is equal to 2F। फॉर्मूला लगा के आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। The third one is name a mirror that can give an erect and enlarged image of the object. Go back to the sessions. Part 2 में आप जाइए and find out करिए। Why do we prefer convex mirror as a rear view? ये तो just पीछे की स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, तो write down these question and answer. Sign convention for reflection by spherical mirrors. Okay, when we are doing numericals or we are finding the object distance, image distance, at that time we are supposed to put the values of U, V, F, C and R with a sign, and for that we follow a proper sign convention. What is that proper sign convention? We will study here. While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention, and that is called new Cartesian sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. Remember, pole P is taken as the origin, and the principal axis of the mirror is taken x-axis. Okay, and the conventions are as follow. The first one is the object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. याद रखना हमेशा, अगर ये आपका मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है? हमेशा इसके लेफ्ट में। लेफ्ट मीन्स इधर ऑब्जेक्ट रखना है।
चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। फाइन। द सेकेंड वन इज all the distances parallel to principal axis are measured from the pole of the mirror। अगर हमको यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करना है तो कहाँ से फाइंड मेजर करेंगे? यहाँ पोल से मेजर करेंगे। हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो यहाँ हम पोल से मेजर करेंगे, इधर का या इधर का। ओके। थर्ड वन, all the distances measured to the right of the origin are taken as positive। ओरिजिन के राइट में जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। दिस इज ओरिजिन, और इसके राइट में ये सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, वो सारी की सारी इस तरफ नेगेटिव होंगी। डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। और डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, इधर जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होंगे। ओके, तो ये था आपका साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखो द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर सो ब्यूटीफुली। ये आपका मिरर है, इस तरफ जो सब प्लस में है डिस्टेंसेस, इस तरफ के डिस्टेंसेस माइनस में है, ऊपर के डिस्टेंसेस प्लस में है और नीचे के डिस्टेंसेस माइनस में है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम P एंड यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ओके, चलो इसको क्लीन कर देते हैं, आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहाँ अप्लाई होता है ये साइन कन्वेंशन? दिस इज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड टू सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इसी सेशन में हम आगे देखेंगे। Mirror formula and magnification. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole called object distance u। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा और हमेशा u से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा और हमेशा v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फोकस है वो f से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो whenever we are working with mirror, whether it is concave or convex, object distance is u, image distance is v and focal length is f। और एक फॉर्मूला होता है that gives relation between these u, v and f, that is known as mirror formula। और वो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f is equal to 1/v plus 1/u, जहां पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस एंड f है फोकल लेंथ। ओके, सो दैट इज मिरर फॉर्मूला। और ये जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस फॉर ऑल द स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा सेम नहीं होता है हमेशा। दैट इज sometime you get larger image, sometime you get smaller one, and sometime you get same size of the image। So the extent, relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size is known as magnification। सिंपली अगर आसान भाषा में बोले तो आप बोल सकते हैं कि इमेज का साइज कितना कम या ज्यादा होता है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला भी होता है और मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? what is the formula? Magnification is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object। सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h और इमेज की हाइट h1, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? m इज इक्वल टू h i अपॉन h o। i मीन्स इमेज और o मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट, फाइन, दैट इज द मैग्निफिकेशन। Magnification is also related to the object distance and image distance also। जैसे हमने m का फॉर्मूला दिया इन टर्म्स ऑफ h, ऐसे ही m का फॉर्मूला हम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u and v। What is that formula? So let me show you that formula। m is equal to v
अपॉन यू। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट है, at that time also you can find out the value of m, and if you have u and v, at that time also you can find out the value of m. Okay, these are some important points. The first one is the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा जो एच ओ होगा वो पॉजिटिव होता है। दूसरा, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। ओके, नीचे की साइड बनते हैं तो वो नेगेटिव होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे। A negative sign in the value of magnification indicates that the image is real, or positive sign indicates that the image is virtual. This is example 10.1 that is given in your textbook. So let me see what is there in that example. Let me read out the example at first. You also read with me. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find out the position, nature and size of the mirror, size of the image. Okay, ये चीज आपको find out करना है। कैसे आप find out करेंगे? ये solution है। Step wise I will explain. Just follow my red pen so it will be easy to you that what we are doing to understand. Radius of curvature कितना दिया है? आपको दिया है 3 मीटर। यहाँ पर radius of curvature 3 मीटर। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? यहाँ पर 5 मीटर। क्यों हमने माइनस लगाया? क्योंकि जो U है ना यहाँ से लेफ्ट साइड होता है इधर, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं है, हाइट ऑफ द इमेज मालूम नहीं है। These two physical quantities we have to find out and these two are given. So what to do? At first you use the formula F is equal to R upon 2. तो यहाँ से आपका F का वैल्यू आ गया 1.5 मीटर। ओके, अब आपके पास F है, आपके पास U है, तो आप बहुत आसानी से V निकाल सकते हैं। How will you find out V? Simply just use mirror formula. 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. ओके, वैल्यू पुटअप करिए आप, और वैल्यू पुटअप करने के बाद सिंपल जस्ट आपको सॉल्व करना है। अब ये क्या बन गया? फ्रैक्शन का आपको क्वेश्चन बन गया। 7.50 अपॉन 6.50, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ V। V मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। अब आपको फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन M मीन्स H डैश अपॉन H, या आप V अपॉन U, कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो आप V अपॉन U से निकालेंगे क्योंकि H डैश और H दोनों ही नहीं है आपके पास। सो हाउ विल यू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन? सो टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू V अपॉन U, और माइनस साइन आप पुटअप करेंगे तो V इज इक्वल टू 1.15 एंड U इज इक्वल टू माइनस 5.00। आपका आंसर आ जाएगा 0.23। ओके, यहाँ पर है ना, आप एक पुट कर लीजिए प्लस का साइन जो रह गया है। ओके, तो ये 1 अपॉन V है। चलो आगे चलते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 10.2। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror and the focal length of the concave mirror is 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? And you have to find out the nature and the size of the image also. Okay, so let me solve it. The first thing that is given is object size, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, एंड देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। एंड सी वन थिंग, डू यू नोटिस यहाँ पर फिर से माइनस लगा है। क्यों ये माइनस लगा है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के किस साइड रखा गया है? लेफ्ट साइड। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड वी विल present it in negative. So U is equal to minus 25, H is equal to plus 4. Focal length F is equal to minus 15 centimeter. Okay,
कॉनकेव मिरर है इसलिए उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस v हमें फाइंड आउट करना है। इमेज साइज h डैश हमें फाइंड आउट करना है। इमेज साइज है ना, h डैश भी बोल सकते हैं, hi भी बोल सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट, कुछ आपको सिंबल चाहिए। क्या करना है? वेरी सिंपल, जस्ट यूज मिरर फॉर्मूला। आपके पास मिरर फॉर्मूला है, द सेम मिरर फॉर्मूला यू कैन यूज, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब द नेक्स्ट स्टेप इज 1 by 1, यहाँ पर सिंपली v, u और f आप वैल्यू पुटअप कीजिए। आपके पास u का वैल्यू है, आपके पास f का वैल्यू है, तो आपके पास v का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू आपके पास क्या आएगा? -37.5 मीटर। दैट इज द आंसर कि आपका जो इमेज है वो इतने डिस्टेंस पर होगा। तो स्क्रीन कहाँ रखना चाहिए? द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर in front of the mirror. Okay, and the image is real. अब मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, h डैश अपॉन h या -v अपॉन u। ठीक है, अब आपके पास h डैश फाइंड आउट करने के लिए h है, यस h हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास v है और u है, तो ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपके पास h डैश आ जाएगा। ठीक है, तो h डैश होगा -6 सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगा हमारा इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज्ड होगा। और देखो ये माइनस साइन है, माइनस साइन मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे नीचे होगा जो इमेज है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है। ओके, क्वेश्चंस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। r 32 है तो f कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी लर्न। विच वन इज दैट? डू यू रिमेंबर दैट? दैट इज r इज इक्वल टू 2f। ओके, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Go through the session and solve this question by yourself. Try to solve. If you are not able to do, I'll be sending you the solved questions. Okay, but do one thing. Whenever I send you the solved question answer or solved numericals, do not copy them. Try to solve yourself, and at which point do you think now I'm not able to solve it? At that time you take help of those things. Just copying does not mean anything. Okay, so this was the today's session. You can go through it again if you think you need to go, and write down the question and answer in your notebook, and we'll meet again for the next part, that is part number